Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today in this video we are going to discuss the next chapters, that is fourth and fifth chapter of economic survey. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ first time join ਕਰ ਰਹੇ ਆ, I would like to inform you ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ economy ਦੀ series run ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we have already discussed the syllabus of economy, budget of Punjab, the economic survey of Punjab we are discussing in series of videos. Economic survey ਦੀ ਇਹ third video ਹੈ. First chapter macroeconomic view, then second chapter on agriculture we have discussed in the previous two videos. ठीक है जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਲਿਖ ਦਿਆ ਹੈ, ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰਸ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੋਨਮੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚ ਜਾਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਫॉर गेटिंग द कंटेंट रिलेटेड टू दिस इकोनॉमिक सर्वे, राइट। सो आई डिस्कस द डिटेल्स। अगे ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्लीज लाइक शेयर ਤੇ सब्सक्राइब करो ਸਾਡਾ चैनल। इट हेल्प्स the algorithm of the YouTube and it helps us to grow with you, right, to provide best quality content to you. We need that support, right जी। let's begin। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਇਕੋਨਮੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right। industrialization hundi kya hai, you see it started in 1750s with Britain, right, where we replace human effort with mechanization, basically machines, factories ਇਹ setup ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, rather than ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ, we are now using machines। ਠੀਕ ਹੈ, that was basically industrialization and that ਜਿਹੜੀ 1750s ਚ start ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ industrial revolution ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1.0 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਇਵਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋਬੋਟਸ ਟੂ ਡੂ ਆਰ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 4.0 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇजेस ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਐਨੀ ਇਕੋਨਮੀ। why is it significant? so देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर जेड़ा है इट पुशेस ऑल दी अदर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर च जेड़ा रॉ मटीरियल, लेट्स से कॉटन बनता है, कॉटन का क्या यूज, जब तक इंडस्ट्री नहीं है जेड़ी उस तो शर्ट्स बनावे, है ना, सॉक्स बनावे, हैंकीज बनावे, टॉवल्स बनाए, बेडशीट्स बनाए, राइट। सो काइंड ऑफ एग्रीकल्चर सानू प्रोवाइड कर रहा है रॉ मटीरियल, बट और रॉ मटीरियल नू यूटिलाइज करने लिए वी नीड इंडस्ट्री, राइट। सिमिलरली सर्विसेज सेक्टर क्या है, लेट्स से कॉल सेंटर्स आर देयर, कॉल सेंटर्स क्या बेचेंगे if there is no production, right? so production happens in industry which is being sold by the call centers, let's say, right। just a brief example of saying that how industrial sector is crucial or driving both the agriculture and the services sector। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन इज कि यह पूरी इकोनॉमी ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, पूरी इकोनॉमी ਦੀ ग्रोथ ਲਈ ਕਾਫੀ क्रूशियल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू ग्रो एन इकोनॉमी। साडी इकोनॉमी नू चलाए रखने लिए भी इंपॉर्टेंट है। सी एवरीथिंग नीड्स मैन्युफैक्चरिंग। लेट्स से बसेस चल रही हैं, टीवीज चल रहे हैं तुहाडे घरां दे विच, फ्रिजेस चल रहे हैं तुहाडी किचन्स दे विच, तुसीं स्कूलां विच पढ़ रहे हो, कॉपीज ते लिख रहे हो, everything is linked to industry, manufacturing or somehow कंस्ट्रक्शन सैक्टर विच इज इंक्लूडिड इन द इंडस्ट्रीयल सैक्टर। तुहाडे स्कूल्स दी बिल्डिंग बनी हुई है, तुहाडे घर बने हुए ने, everything is indirectly linked to the industrial sector, is a part of industrial sector। so पूरी कंट्री दी ग्रोथ लई, सारे इंडिविजुअल्स दी ग्रोथ लई इंडस्ट्रीयल सैक्टर इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है जी, उस तो बाद जब ग्रोथ देगा तो इंप्लॉयमेंट भी देगा। सब तो वन ऑफ द हाईएस्ट इंप्लॉइंग सैक्टर इंडस्ट्रीयल सैक्टर रहिंदा है। ठीक है, सो इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी रहिंदी है। कंस्ट्रक्शन सैक्टर च देखो कितनी लेबर फोर्स वर्क कर रही है, स्पैशली अनस्किल्ड या सैमी स्किल्ड जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है सानू इंडस्ट्रीयल सैक्टर दे विच। अदरवाइज सर्विसेज सैक्टर च ऑल्सो यू रिक्वायर हाई क्वालिफाइड एजुकेशन, ठीक है, स्पैशली सर्विसेज सैक्टर दे विच। बट यह जिहा सैक्टर है जिहड़ा सानू अनस्किल्ड या सैमी स्किल्ड जॉब्स काफ़ी सारी क्रिएट करता है एंड एज अ रिजल्ट इट पुल्स मैनी पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि जिन्होंने काम मिलूगा वो आपदे लई खाना भी क्रिएट कर पाएंगे, आपदे लई कमाई क्रिएट कर पाएंगे, आपदे लई बेटर लाइवलीहुड्स क्रिएट कर पाएंगे, राइट। सो इनडायरेक्टली इट reduces poverty also। then export potential बहुत है। China, Chinese made toys, Chinese made phones, TVs, ACs, everything you are buying these days। why? because China is the manufacturing leader of the entire world। इन्ना कोई manufacture नहीं करता जिन्ना China करता है।
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ BRI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬੋਥ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਇਟਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਐਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫੋਰੈਕਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਦ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਥ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੈਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਵੀਕ ਹੋ, ਜੁਆਇਨ ਆਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ from wherever you are reading, और अगर किते भी दिक्कत होवे join some classes or watch some videos that can help you clarify the concepts, ठीक है। then you will understand कि मैं की इत्थे कहना चाह रही हूँ, राइट। सो फर्स्टली ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, वाई दिस सैक्टर इज सिग्निफिकेंट फॉर अस। हुण पंजाब ने क्या किया है आपदे इंडस्ट्रीयल सैक्टर नूं प्रमोट करन लई। सो दीज आर द मेजर एफर्ट्स दैट पंजाब हैज़ टेकन। पहली गल तां बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना सो दैट इंडस्ट्रीज कैन फंक्शन इन अ फ्री मैनर। जिवें ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਂਡਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੰਡਿਊਸਿਵ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਇਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਰਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਫਰਸਟ ਨੀਡ ਲੋਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੂਸਟ ਅ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਅ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਟ ਅਪ ਬਾय ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ what will this invest ਪੰਜਾਬ do? ਇਹ ਉਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਆਲ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੇਨਸ ਵੂਨਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ, ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਨਾਓ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅੱਡ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਪੋਰਟਲ, ਵਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, right? So this is kind of a single window mechanism. So this is very crucial for ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦਿਸ, तो ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, NOCs ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਪ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਜੰਪ ਫਰੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਫਿਸਰ ਟੂ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਪੇ ਐਵਰੀਵਨ ਅ ਘੂਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਐਸਐਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ,
इलैक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ एंड ऑल एंड माइनिंग एंड क्वेयरिंग। पंजाब च अगर तुसीं देखो मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर सब तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रीयल सैक्टर दे विच, क्योंकि देखो पंजाब दे विच किहड़ी इंडस्ट्री फेमस है, खुद सोच लो, होजरी या टैक्सटाइल इंडस्ट्री लुधियाना दे विच, स्टील वगैरह गोबिंदगढ़ है ना, एंड देन साइकिल इंडस्ट्री अगैन लुधियाना, राइट। सो ओबवियसली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जिहड़ी है वो मैक्सीमम है पंजाब दे विच, वो सारे नाल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इस तो बाद कंस्ट्रक्शन सैक्टर आ जाता इंडस्ट्रीयल सैक्टर दे विच पंजाब दे विच, then supplies electricity gas water and other supplies and finally mining and quarrying, right। ये सीक्वेंस प्लीज याद रखो, कई बार प्रीलिम्स च क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब दे इंडस्ट्रीयल सैक्टर च मेजर कंट्रीब्यूटर किहड़े सैक्टर दी है, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग इज द वन दैट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द पंजाब्स इंडस्ट्रीयल ग्रोथ, राइट। ना हुण इंडस्ट्रीयल ग्रोथ दे अगर नंबर देखिए 10 सालां दे विच नैशनल एवरेज ग्रोथ रही है इंडस्ट्रीयल सैक्टर दी 5.5% एंड पंजाब दी भी अच्छी इंडस्ट्रीयल सैक्टर ग्रोथ रही है 5.6% ते ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नैशनल एवरेज, राइट। सो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है पंजाब दा इंडस्ट्रीयल सैक्टर, जिन्ना आपां पुश कर सकीए दैट इज द बेस्ट, बट करंटली ऑल्सो इट इज फेयरिंग वेल। बहुत ज़्यादा खराब या बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस भी नहीं है, बट इट इज डूइंग फेयरली वेल, ठीक है। ये नंबर याद रख सकते हैं आप आंसर्स च लिखण लई, राइट। कई बच्चों ने कमेंट सैक्शन च लिखा होया सी कि किहड़े-किहड़े डाटा याद करने हैं, ਜਿਹੜੇ मैं इत्थे डाटा डिस्कस कर रही हूँ दीज आर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे ही याद करोगे दे विल हेल्प यू इन वेरियस आंसर्स, वेरियस जीएस पेपर्स, एसए पेपर्स एंड इवन इन योर इंटरव्यू, राइट। सो जिन्ने याद कर सकते हो ये याद करो, स्पेशली जेडे मेरे रिटन डाटा पॉइंट्स ने वो तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है ही ने, इसीलिए मैं लिख के भी वो डिस्कस कर रही हैं, राइट। सो दैट यू शुड रिमेंबर। नैक्सट जिहड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पंजाब दे इंडस्ट्रीयल सैक्टर नू जो बूस्ट कर रही है दैट इज द फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री, राइट ना। फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री मैं लास्ट वीडियो च भी दस्सिया सी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री? देखो दो तरीकों नाल फूड प्रोसैसिंग हो सकती है। फर्स्ट इज कि रॉ मटीरियल नू तुसी प्रोसैस्ड फूड्स च कन्वर्ट कर रहे हो, जिवें कि लेट्स से कि साडे कोल आलू है, ਅਸੀਂ पंजाब च आलू ग्रो किते, हुण आलू ही क्यों बेची जाइए, ਆਪਾਂ चिप्स बना के बेच सकते हैं। टमाटर ग्रो किते, टमाटर ही क्यों बेचिए, आप टोमेटो केचप बेचते हैं, राइट। सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ प्रोसैसिंग। या सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोसैसिंग क्या होंदी है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਚ वैल्यू ऐड करिए, न्यूट्रिशन ऐड करिए। नॉर्मल फूड में नॉट हैव एज मच रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। लेट्स से आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं बट राइस एज सच ज्यादा विटामिन्स नहीं दिंदा है बॉडी नू, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होंदे हैं, विटामिन मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी। सो हाउ डू वी इंश्योर कि भाई लोकां तक, बच्चों तक राइस भी जावे बट विटामिन्स दे नाल फोर्टिफाइड, राइट। फोर्टिफाइड राइस दा कॉन्सेप्ट यू माइट हैव हर्ड, फोर्टिफाइड, right। All of this can be the part of food processing industry which can help in various मैनर्स, ठीक है। ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 40-50 ਲਗਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। बट अगर तुसी ਉਹੀ 200 ग्राम 250 ग्राम ਦਾ ਲੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਵੇਚੋਗੇ ਉਹੀ 20 to 30 रुपीस ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ, राइट। सो वैल्यू एडिशन होंदी है, इनकम इंक्रीज होंदी है फार्मर दी, वेस्टेज घटती है क्योंकि यू विल बी क्विकली प्रोसैसिंग दी फूड दैट हैज बीन जनरेटेड। वैसे भी सड़े गले चीज़ां भी एक्चुअली यूज होंदी है प्रोसैसिंग इंडस्ट्री च, सड़े गले बिकॉज उन्होंने स्क्वीज ही करना है, टमाटर नू स्क्वीज करके वैसे भी कैचअप ही बनाना है, गला के कैचअप ही बनाना है वैसे भी, राइट। सो वेस्टेज घटती है, इनकम वधेगी, राइट। एक्सपोर्ट्स च बिकॉज वी आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है, उन्होंने शेल्फ लाइफ वध जाती है। एक टमाटर मे बी हफ्ता या 10 दिन चल सके, बट एक टोमैटो कैचअप जिहड़ी है वो 3-4-6 महीने या 12 महीने भी चल सकती है, राइट, बिकॉज वी एड प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। बट शेल्फ लाइफ इंक्रीजेस, नाउ इट कैन रीच टू वाइडर मार्केट्स। सिर्फ पंजाब च नहीं, तुसी इंडिया च नहीं, पूरी दुनिया च उन्होंने बेच सकते हो क्योंकि वो लंबे टाइम तक रहेगी, राइट। सो शेल्फ लाइफ इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंदे ही कंट्री दा फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज होंदा है, राइट। ओवरऑल इंप्लॉयमेंट जनरेशन बहुत है, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट, याद रखना है। वाई आई एम सेइंग फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री इज क्वाइट इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव, यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जिस च तुसी ग्रोथ करते हो तो इंप्लॉयमेंट ज़्यादा ग्रो होंदी है, जिवें टैक्सटाइल सैक्टर इज वन सच सैक्टर एंड फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री इज सच टॉप सैक्टर जिस इंप्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ऑल्सो पंजाब लिए स्पेशली फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी सिग्निफिकेंट।
ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल कि ਹੁਣ तक किसान राइस ही ग्रो करेगा, बट अगर लेट्स से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके नाल एस्टैब्लिश हो जाए, किसान विल बी मोटिवेटेड टू ग्रो लेट्स से किन्नो, ही विल बी मोटिवेटेड टू ग्रो लेट्स से एप्पल, क्योंकि वो फिर कंपनीज ओदे ही एक्वायर कर लेंगियां, सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह चलेगी, फार्मर कोल सिक्योर बायर होएगा, क्योंकि कंपनीज नीड दोज प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, सो इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन च भी ये हेल्प कर सकता है। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी च स्पेशली विद द फोर्टिफिकेशन प्रोसेस वी कैन क्रिएट फूड दैट इज फोर्टिफाइड ऑल्सो, राइट। सो देखो इन्ने बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स, इंटरनेशनल ग्लोबल बेनिफिट्स आर देयर इफ वी प्रमोट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसलिए देखो पंजाब 'ਚ काफ़ी पुश किया जा रहा है, इनू सनराइज इमरजिंग जिन्हों कहते हैं इंडस्ट्री भी कहा जा रहा है। बहुत सारी ग्रोथ हुई है, बट देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, स्पैशली इन पंजाब ऑल्सो, क्योंकि रॉ मटीरियल इत्थे ही मिलता है, सानू उगदा है साडी जमीनां ते। ईवन आई वुड इनकरेज यूथ जिन्हां दे घरे खेत हैगे, वड्डे खेत ने, स्पैशली यू शुड थिंक अपॉन सर्टेन स्टार्टअप्स, जिहड़ा कि तुसीं आपदे खेत दा समान जिहड़ा है उहनूं प्रोसैस करके बेच सको, right? That will increase your family's income, that will also employ the women in your family or in the area, especially food processing industry ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ local jobs create ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, rural areas 'ਚ job create ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? So that is why this is very important. So पंजाब ने काफ़ी सारे steps लिते हैं इस इंडस्ट्री ਨੂੰ प्रमोट ਕਰਨ ਲਈ। सो ये इनिशिएटिव्स याद रखने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसैसिंग टैक्नोलॉजी बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਅਸ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮੂਲ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮੂਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਾਈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਸੈਲ ਜਸਟ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦ ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਸਪਾਈਸ chili powder, let's say, right? All of that is required. Second initiative ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ। ਸੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ग्रो करन दी स्किल वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ये भी पंजाब फोकस कर रहा है। दैन मैगा फूड पार्क, वड्डा फूड पार्क ऑलरेडी बन चुका है। फूड पार्क का मतलब क्या है, तो फूड प्रोसैसिंग दे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होणगियां, राइट। सो पंजाब दे विच लद्दोवाल च ये जिहड़ा है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स दे नाल सैटअप किया गया है। इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है, 100 तो लैके 120 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इस पा दी गई है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बारे याद रखो। एंड फाइनली जी साडी सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसैसिंग एंड इंडस्ट्री, उन्हें भी 38 करोड़ रुपया डिसबर्स किया है टू प्रमोट फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री इन पंजाब, राइट। सो ये 3-4 इनिशिएटिव्स याद रखो। फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज से हाईली पॉसिबल है क्वेश्चन आना पंजाब दे विच, एंड इवन ऐसे भी आ सकता है। सो रीड दिस टॉपिक वेरी वेरी इन डेप्थ। ऑलरेडी यूपीएससी फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री ते क्वेश्चन पूछ चुका है 2020 दे विच आई थिंक, एंड अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो इनू ध्यान नाल करो। नैक्सट मेजर इंडस्ट्री या सैक्टर जो पंजाब दा पुश हो रहा, दैट इज एमएसएमई सैक्टर। एमएसएमई यानी कि पंजाब च तुसीं देखो छोटी छोटी फर्म्स ज़्यादा है, बहुत वड्डी कोई फर्म तुहानूं घट दिखणगियां, बट स्मॉल स्केल बिजनेसिस आर मोर, मीडियम स्केल बिजनेसिस आर मोर, ठीक है। सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन च लिख के दसो कि इहदी डेफिनेशन क्या है, माइक्रो इंटरप्राइज किहड़ी हुंदी है, स्मॉल किहड़ी हुंदी है, ते मीडियम किहनूं कंसीडर करते हैं, वॉट इज द गवर्नमेंट डेफिनेशन। ये बहुत जरूरी है, प्लीज़ इहनूं याद करो, ये ते प्रीलिम्स ते क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड दिस, ठीक है। जो डेफिनेशन चेंज हुई थी तब यूपीएससी ने पूछा सी। इन जनरल ऑल्सो पंजाब पीसीएस से क्वेश्चन पूछ सकता है। एनपीए ते पंजाब च क्वेश्चन आ चुका है। एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किनू कहते हैं। एज सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट असी पढ़े नहीं होंगे, तो इसीलिए
ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ MSME ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜੌਬਸ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਲੋਕਲ ਗਰੋਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ GDP ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ MSME ਸੈਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। इसीलिए देखो पंजाब च 2 लाख यूनिट्स ने, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल, बाईसाइकिल, हाउसरी सैक्टर वगैरह जिन्नियां भी है, 2 लाख MSME यूनिट्स ने ते 9.3 लाख जॉब्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ यूनिट्स ने ਇੰਨੀ almost 5 time jobs they are creating. So इसीलिए MSME sector is very very crucial. Even economic output ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 63,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MSME ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੇਅਰ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੀਡ ਟੂ ਪੁਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, राइट, यानी कि अगर छोटे छोटे फर्म्स है, दे माइट नॉट बी एबल टू लेट्स से हैंडल सर्टेन टेक्नोलॉजी इंडिविजुअली, तो उन्होंने की किया इकट्ठे करके कि बई तुसी इकट्ठे ये एफर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से कि वेस्ट मैनेजमेंट करना, इंडस्ट्री है वो पानी नूं बड़ा पोल्यूट करती है, तो पोल्यूशन दे लई हुण उन्हां नूं फाइन लग सकता है। सो वाटर क्लीनजिंग सिस्टम जिहड़ा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होएगा। सो वट दे कैन डू इज़ कट्ठियां इंडस्ट्रीज मिलके एक क्लिनजिंग सिस्टम लान, कट्ठे दे कैन पुट मनी, कुछ गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज कर देगी, कुछ छोटिया छोटिया फर्म्स पा देंगे, एंड इन दैट वे एवरी वन विल बेनिफिट। गवर्नमेंट विल बेनिफिट, firms will not have much burden, environment will benefit, water will not get polluted, and then us customers, us normal people will also not be impacted by the pollution, ठीक है। सो इस तरीके के मॉडल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟਰੂਲੀ देयर। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟਾਕ ਟੂ them, they will tell you that these systems are already in operation, ठीक है। एंड सैकेंड स्टैप ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ MSME ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, that will push the MSMEs, ठीक है। ਕਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾਈ ਦਿਸ MSME ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ MSMEs ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਿਸ MSME ਯੂਨਿਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, right। Now overall steps that Punjab has taken to promote industrial sector in the state, ठीक है। सो वही सेम चीज़ा तुसी लिख सकते हो। ओवरऑल देखिए, पहला तो न्यू इंडस्ट्रीयल बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी पंजाब ने तैयार की सी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSME ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, राइट। सो नाउ सिस्टम क्या है, रैंडम इंस्पैक्शंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਟ। ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਚੇਂਜਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ ਆਊਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀ,
ठीक है। इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल भी पंजाब ने बनाता है। अगेन पोर्टल का मतलब क्या है, डिजिटल वैबसाइट है, उते ही सारा कुछ तुसी इन्फॉर्मेशन लै सकते हो, क्लीयरेंसेस लै सकते हो, एवरीथिंग दैट यू वांट हुण डिजिटल इंटरफेस होगा। अगर तुसी खुद गवर्नमेंट दे ऑफिस च जांदे सी कोई भी रिक्वायरमेंट ਲਈ दे विल आस्क फॉर मनी। नाउ डिजिटल इंटरफेस हो गया है, इत्थों मैंने आपदे सर्टिफिकेट्स अपलोड करते, उतों किसी ने भी बैठे अप्रूव करना है। पैसे का रोल जिहड़ा इस नाल घटेगा, स्लो टाइम टेकिंग प्रोसैस जिहड़ा है वो घटेगा, राइट, स्पीड विल इंक्रीज। दैट इज वाई दिस इज वेरी क्रूशल। ते पंजाब दे इस पोर्टल नू काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले है, डिजिटल इंडिया सिल्वर अवार्ड मिल चुकिया है 2023 दे विच, राइट। इन्वेस्ट पंजाब नू टॉप रैंक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड भी मिलया है। तुसी देखो पंजाब लॉजिस्टिक्स दे विच 3rd स्टेट है। लॉजिस्टिक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज रीड द लॉजिस्टिक्स सेक्शन ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स क्या होंगे है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री क्या है, ये चैलेंजेस क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज वॉट पंजाब गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रमोट इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अस। ठीक है जी। नाउ वी विल मूव टू द सर्विसेज सेक्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक सर्वे। सर्विसेज सेक्टर, द टर्शरी सेक्टर इज वेरी क्रूशल फॉर द इकोनॉमी, स्पेशली पंजाब च अगर तुसी देखो 46 to 47% ऑफ पंजाब GSVA इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्विसेज सेक्टर। इंप्लॉयमेंट च भी अगर तुसी देखो 41 to 45% इंप्लॉयमेंट दी कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन दी सर्विसेज सेक्टर। सो दैट इज वाई दिस सेक्टर इज वेरी क्रूशल, राइट। सर्विसेज सेक्टर का मतलब क्या होंगे है, बहुत सारी सर्विसेज, जिमें कि कस्टमर केयर मैं तुहानू दस्सिया, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सारी प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, राइट, CAs, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन द सर्विसेज सेक्टर, राइट। सो इसीलिए सर्विसेज सेक्टर साडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साडी इकोनॉमी नू ग्रो कर रहा है, पंजाब दी इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ कर रहा है, राइट। बट इशू ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ बनना है, यू नीड डिग्री, यू नीड स्किल्स, दैट इज ऑल्सो सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, तुसी टीचर बनना है, यू नीड नॉलेज, यू नीड द टीचिंग स्किल। You want to be a top notch doctor, you need education, degree and skills, right? So इसीलिए सर्विसेज सेक्टर ਜਿਹੜਾ है, it is a very much returning sector। ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रोथ पैसा वगैरह कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर्स तो ज़्यादा मिल सकता है, बट अगेन इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज अ क्रूशियल सेक्टर। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिते हैं टू प्रमोट सर्विसेज सेक्टर। सो तुसी देखो मोहाली वाला एरिया ਜਿਹੜਾ है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਸਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं, डिस्ट्रिक्ट ਦਾ नाम, दिस हैज बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन IT सेक्टर हब, राइट। हौली हौली बहुत ग्रो हो रहा है, राइट। इनू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रीजन जिहड़ा है पंजाब कन्वर्ट कर रहा है। इत्थे एक्सीलेंट IT इकोसिस्टम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, राइट। स्पेशल एजेंसी भी IT प्रमोशन ਲਈ पंजाब ने सैटअप कर दी गई है, राइट। एंड IT पार्क, IT नॉलेज पार्क्स, ये सब मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ एस्टैबलिश किए गए ने, राइट। एंड फाइनली तुसी अगर देखो स्टार्टअप एसलरेटर चैंबर ऑफ कॉमर्स भी सैटअप किया गया है, क्योंकि ये IT पार्क्स च क्या आनियां बहुत सारी स्टार्टअप्स, राइट। तो उन्होंने सपोर्ट करने लिए, प्रमोट करने लिए ये स्पेशल यूनिट जी है पंजाब च सैटअप की गई है, राइट। सो इसीलिए दिस इज हाउ पंजाब इज ट्राइंग टू प्रमोट द IT सेक्टर। बेसिकली मोहाली जिहड़ा है हब बनेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोहाली कैन बिकम अ नेक्स्ट गुड़गांव, राइट। बट पंजाब का वही इशू है, बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, पंजाब फेसेस सेवरल इश्यूज। ठीक है, लेट्स सी how Punjab is able to manage its security, its border status and deliver well to the people of Punjab. ठीक है जी, so that will be there। नेक्स्ट है टूरिज्म सेक्टर। नाउ सर्विसेज सेक्टर च टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा क्रूशल है, स्पेशली फॉर पंजाब, बिकॉज पंजाब इज नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अगर तुसी देखो, वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यंस दी इनकमिंग, एवरीथिंग हैज बिन विटनेस्ड बाय पंजाब, राइट। जिन्ने भी इन्वेडर्स आए वो पंजाब च पहला आके रुकनगे। बठिंडा इज कॉल्ड एज तबरे हिंद, द गेटवे ऑफ इंडिया, राइट। सो इस तरीके नाल पंजाब जिहड़ा है ह्यूमन सिविलाइजेशन ਲਈ एंड इवन इंडिया दी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ਲਈ काफ़ी क्रूशल है। दैट इज़ वाई वी सी लॉट ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स ऑल्सो, ऑल्दो पार्टीशन तो बाद बहुत ज़्यादा अपना कल्चर का जोड़ा डीप हिस्सा है वो पाकिस्तान वाल चला गया, स्पेशली द सिटी ऑफ लाहौर,
we you know really lament the loss of Lahore, but that is how it is. but पंजाब च जिन्ना कल्चरल वेल्थ रही है, राइट, शायद ही किसी जगह ते रही हो। टेम्पल्स, गुरुद्वारास, फुलकारी, जुत्ती, पोएट्स देखो साडे किन्ने, यू नो, रिमार्केबल पोएट्स हैव बीन गिवन बाय पंजाब। ठीक है, सो इसे ਲਈ टूरिज्म सैक्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਿਸਟ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ that is receiving largest tourist in ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਓਵਰ द ईयर अगर तुसी देखो 20% ग्रोथ रेट रही है इस सेक्टर दी। टूरिज्म सेक्टर इटसेल्फ इज ग्रोइंग 20%, राइट। अगेन ये भी काफ़ी सारी इंप्लॉयमेंट्स क्रिएट करेगा, डिफरेंट वेज दी इंप्लॉयमेंट कर सकता है, जिमें कि टूरिस्ट गाइड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर च होटल सेक्टर ਨੂੰ प्रमोट करेगा, ईटरीज, लोकल ईटरीज ਨੂੰ प्रमोट करेगा, या जिमें कल्चर रिलेटेड सूट्स दी दुकाना हो गई, फुलकारी, एवरीवन वांट्स टू कीप अ फुलकारी यू नो इन देयर वेडिंग ट्रूसो एंड ऑल, गर्ल्स विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो यह जे सैक्टर ਨੂੰ बहुत प्रमोट करता है, नॉट जस्ट पंजाबीज बट आउटसाइड पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू रेलिश कम एंड रेलिश दिस कल्चर फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो इसीलिए टूरिज्म सैक्टर ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੀ इकोनॉमी ਨੂੰ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकता है। देखो इन्ना सब एरियाज ਤੇ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इवन आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू कि भी पंजाब च टूरिज्म सैक्टर ਦਾ स्कोप क्या है या ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा बैठ के सोचिया करो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जे तुसी एक्चुअली अफसर लग गए ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਟੂ ਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਫਰਦਰ। ठीक है, टूरिज्म कैन बी वन एरिया वेयर वी कैन फोकस, राइट। सो इसीलिए तुसी देखो गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स जेडे ऑलरेडी लिते हैं। पंजाब एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी, पंजाब च एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करना, राइट, ओते फोकस करेगा पंजाब। हजे तो देखो पंजाब च कल्चरल ते रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा हुंदा है। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब क्या है, एडवेंचर पार्क्स वगैरह होन, जिमें कि तुसी हिमाचल च जाने हो, पैराग्लाइडिंग एंड ऑल दीज एडवेंचर एक्टिविटीज आर देयर, वो पंजाब च हजे लिमिटेड है। वी आर फोकस्ड मोर ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म, या तो सिख लोग ज्यादा आते हैं या पंजाब का कल्चर जो रेलिश करन चाहते हैं वो लोग ज्यादा आते हैं। सो वी नीड टू क्रिएट अदर एक्टिविटीज ऑल्सो ताकि यूथ वगैरह नू अट्रैक्ट करिए। गोवा च जाके देखो लोग कितना यूथ गोवा नू टूरिज्म का रेवेन्यू दे रहा है, फॉरनर्स ऑल्सो, इंडियंस ऑल्सो। सो दोज आर द एरियाज पंजाब विल ट्राई टू फोकस अंडर दी पंजाब एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी। ये भी मैं डिस्कस की सी 23 दी डिस्कशंस च। दैन पंजाब वाटर टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, वाटर टूरिज्म ਨੂੰ प्रमोट करना चाहती है पंजाब, राइट। लेक्स वगैरह ते जिवें हरिके पट्टन एंड ऑल ये ते ऑलरेडी फैसिलिटीज भी क्रिएट कीतियां गईयां है। होर वाटर बॉडीज ਨੂੰ यूज किया जाए, पंजाब 5 दरियावां ਦੀ धरती है, सो वी शुड यूज दोज वाटर्स टू प्रमोट टूरिज्म। ठीक है, क्रूजेस वगैरह क्रिएट करना, स्मॉल रिवर क्रूजेस की गल कर रही हैं, बड़े क्रूजेस की नहीं, स्मॉल क्रूजेस कैन बी क्रिएटेड, राइट। दिस वे वी कैन यूज आर नेचुरल वेल्थ ऑल्सो, राइट। देन टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। दैट विल बी फोकस्ड, ऑलरेडी चल रहा है पंजाब च। श्री चमकौर साहिब ਜਿਹੜਾ है ਉਹਨੂੰ प्रसाद स्कीम ਦੇ अंडर भी यू नो सिलेक्ट कर लिता गया है, यानी कि इस रिलीजियस साइट ਨੂੰ प्रमोट किया जाएगा। 3 करोड़ तो ज़्यादा, 3000 करोड़ तो ज़्यादा रुपया, लख सॉरी 3000 ਲੱਖ रुपया ਜਿਹੜਾ है ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਟ, राइट। फाइनली पंजाब टूरिज्म समिट एंड ट्रैवल मार्ट भी कंडक्ट कराया गया पंजाब द्वारा, सो दैट वी कैन यू नो अट्रैक्ट टूरिज्म कंपनीज। वही है जो सब मैनेजर करनगियां, अगर कंपनीज होनगियां तो मैनेज करनगियां ते प्रमोट करनगियां, राइट। सो दैट इज हाउ पंजाब इज ट्राइंग टू वर्क। अगैन सानू बहुत अगे पुश करन दी जरूरत है। पंजाब दा इशू यही है कि असी एग्रीकल्चर जोगे रह गए हैं। देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू यूथ ऑल्सो। तुहाडा सपना है अफसर बनन दा, जरूर उहदे लई कोशिश करो, बट अगर वो नहीं भी किसी कारण यू नो फुलफिल हो पांदा, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जस्ट गो आउट, टेक रिस्क, एक्सप्लोर योरसेल्फ। जिधर भी तुहाडा इंटरस्ट है उत्ते ट्राई तो करो, राइट। साडे मापे हैगे ने गाइड करन नूं, हेल्प करन नूं,
right? Try this exam. If not this, then there are so many options for you. Punjab the wealth hai apne kol bahut vaddi, right? So work on those progressive areas, right? So I think that will be all for this discussion. Like, share and subscribe our channel. Share with as many people as you can ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਦੋਸ ਪੀਪਲ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋ, ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਲਿੰਕ ਵਿਦ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ. I'll be there to help you. WhatsApp ਕਰੋ with your name and query. I'll be there to assist you. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ. ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ 11 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਸੁਬਾ. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਣ. ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ. That will be all for this discussion. Thank you so much for joining.